Hello everyone, welcome back to our channel Eduthiasm. We are here with a video on parts of speech of the English grammar. हम आपको हिंदी व्याकरण का शब्द भेद इस वीडियो में बताने वाले हैं. We have made this video in both English and Hindi so that it is convenient for the students to learn in whichever language they are comfortable in. हम इस वीडियो को अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में बताने वाले हैं आपको चीज़ें इसमें, ताकि आप अपनी सहूलियत के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार जिस भी भाषा में आपको आसान लगे आप ये चीज़ समझ लें. सो व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली? All the words that we use for communication belong to certain category. Those categories are known as parts of speech. Every word in a sentence has a role to play. So what role that is known by the parts of speech. हिंदी व्याकरण में हम जिन भी शब्दों का उपयोग करते हैं भाषा की अभिव्यक्ति के लिए, वो सारे शब्द किसी ना किसी शब्द भेद के अंतर्गत विभाजित हैं. हम उन्हीं शब्द भेद के बारे में आज पढ़ने वाले हैं. बेसिकली देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. व्याकरण में कुल 8 प्रकार के शब्द भेद होते हैं. फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा. सेकंड है प्रोनाउन, सर्वनाम. थर्ड होता है वर्ब, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रिया. द फोर्थ वन इज एडजेक्टिव, विच इज कॉल्ड विशेषण इन हिंदी. फिफ्थ इज एडवर्ब, जिसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण. सिक्स्थ इज प्रीपोजिशन, जो कि कहलाता है संबंध बोधक. सेवेंथ है कंजंक्शन, जिसे हम कहते हैं योजक या समुच्चय बोधक. एट्थ होता है इंटरजेक्शन, जिसे हम कहते हैं द्योतक या विस्मयादि बोधक. तो ये था ओवरव्यू पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं. हम एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलग से समझाएंगे, पूरे डिटेल में समझाएंगे. वी विल बी टेलिंग यू every part of speech in detail so that you can have a detailed understanding of the parts of speech. The first part of speech which we are taking up is noun, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा. Noun is a name given to person, place or thing. किसी भी भाषा को यदि हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं तो ऐसे में हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता हो. इन शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं. The first type of classification of noun is into countable and uncountable nouns. As the name suggests, countable nouns are the ones which could be counted, which cannot be measured but counted, and uncountable nouns are the measurable nouns. So, if we can use a, many, a few with the words, then those words are known as countable nouns. And if we use words like little, some, much with some words, so those words with which we can use these adjectives, those are known as uncountable nouns. जैसे कि here is example of countable and uncountable nouns. So a city, we can say a city, many cities, many streets, a few horses. So these are countable nouns. Horses could be counted, cities can be counted, streets also can be counted. But if we say little sugar, so those are not being counted here. Those are being measured. And if we say some water, much obedience, these are uncountable nouns. So I hope you got the difference between the countable and uncountable nouns. Nouns can also be classified into 5 types, which are proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. संज्ञा को हम और 5 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं, जो है पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा. First let's see what is proper noun. Proper noun is a special name of a particular person, place or thing. If we specify a name for a place, person or place, then the
वर्ड इज नोन एज प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ताजमहल या रायपुर। द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर नाउन वुड बी राहुल, दिल्ली। राहुल is a name, specific name given to a boy, so it is a proper noun. Delhi is a particular place, so it is a proper noun. The next type of noun are common noun. Common noun is a name given in common to every person, place or thing of the same class or kind. If we talk about the generalization of proper noun, if we categorize the proper noun into some kind, then those kinds are the common nouns. जब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का सामान्यीकरण कर देते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि ताजमहल एक जगह है, तो स्थान का सामान्यीकरण, ताजमहल एक स्थान है तो वो ताजमहल का सामान्यीकरण अगर करें हम तो वो स्थान होगा। जैसे कि रायपुर, रायपुर भी स्थान है। थर्ड type of noun is collective noun. Collective noun, when a noun stands for a collection of person or things considered as a whole, then it is known as collective noun. For example, fleet, class, flock, etc. जब हम किसी संज्ञा शब्द का प्रयोग किसी समुदाय या समूह का ज्ञान करने के लिए करते हैं तो उन संज्ञा शब्दों को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कक्षा, सेना, ये समूह में इनका हम प्रयोग करते हैं तो वो समूहवाचक संज्ञा होता है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज मटीरियल नाउन। अगला विभाजन संज्ञा का है पदार्थवाचक संज्ञा, जिसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। इफ़ वी यूज द वर्ड्स फॉर स्पेसिफिक मटीरियल्स, then those nouns are known as material noun. अगर हम किसी शब्द का प्रयोग किसी पदार्थ या द्रव्य को संबोधित करने के लिए करते हैं तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। द एग्जाम्पल्स फॉर मटीरियल नाउन आर वुड, ग्लास, गोल्ड। एंड हिंदी में अगर हम पदार्थवाचक संज्ञा का उदाहरण देखें तो वो होगा सोना, पानी इत्यादि। द फिफ्थ कैटेगरी ऑफ नाउन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन is usually the name of a quality, action or state considered apart from the object to which it belongs. If we come to know the quality of any object, thing or place through some words, so those words are abstract noun. भाववाचक संज्ञा ऐसे संज्ञा शब्द होते हैं जिनसे हम किन्हीं पदार्थों के गुण, दोष या भाव का पता लगा सकते हैं। The examples of abstract noun is happiness or kindness, through which we get to know the quality of the objects. हमने इस वीडियो में कवर किया है पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट जो है नाउन। अगले वीडियोस में हम कवर करेंगे प्रोनाउन और बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नहीं किए हैं अभी तक तो, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें हमारी ओर से। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।